In this video, we'll study the chapter Sources of Energy for class 8th. So, first we need to know what is energy. So, energy is nothing but a capacity of a body to do something. So, energy is the capacity of a body to do work. Anything about different forms of energy, such as mechanical energy, heat energy, chemical energy, electric energy, light energy, and many more. These are inconvertible energy, however, cannot be created or destroyed. We need energy for all our activities, for baking chapatis or cooking, to send astronauts into space, for everything. All forms of energy that we use every day are stored in different ways in various sources of energy. We need to know that the substance which produce heat on burning in air are called fuels. There's another important term, fuels. So fuels are nothing but substance which produce heat on burning in air. Now we'll go further to see the classification of sources of energy. These are also based on many different. Classify the sources of energy into three groups on the basis. First is occurrence. Occurrence means either or not it is natural or synthetic. Natural are the ones which are naturally on the. Now we'll study classification of sources of energy. We classify sources of energy on the basis of three types. First is occurrence. Occurrence is also based on two types, which is natural sources and synthetic sources. Natural energy sources are those which are made available to us by nature, such as solar energy, wind energy. Natural बोलो. Natural sources. Natural sources of energy are those which are made us available by the nature, such as solar energy, wind energy, energy from water which is called hydro energy, and many more. तो natural sources वही होते हैं जो हमें already nature से मिले हुए होते हैं, which is a God gift. Next is synthetic sources. Synthetic sources are those that use man-made materials as sources of energy. For example, chemical energy, energy stored in batteries. तो सिंथेटिक सोर्सेज वो होते हैं जो हम खुद बनाते हैं, जैसे कि केमिकल एनर्जी जो हमारी बैटरीज और सेल में यूज़ होती है. द अनदर बेसिस वी क्लासीफाई देम आर फिजिकल स्टेट. फिजिकल स्टेट कि वो किस स्टेट में प्रेजेंट है, किस स्टेट में हमको मिलते हैं, वो होता है. दिस इज ऑल्सो फर्दर डिवाइडेड इंटू थ्री स्टेट्स, विच इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. In the earlier classes we are very well familiar with all of these states. हम इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, इसके एग्जाम्पल्स याद करेंगे. जैसे सॉलिड में होते हैं फायरवुड, चारकोल, कोल एक्सेट्रा. लिक्विड में होते हैं केरोसिन, पेट्रोल, डीजल एंड एक्सेट्रा. एंड गैसियस में होते हैं LPG, CNG, विच आर फर्दर एक्सेट्रा. The third basis on which we classify sources are availability. यानी कि वो हमारे लिए कितना अवेलेबल है और कितनी आसानी से हम उन्हें ले सकते हैं. उसके बेसिस पे ये फर्दर टू में डिवाइड है, विच इज़ रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल. रीन्यूएबल एज द वर्ड सेज री, जो कि दोबारा से रीन्यू हो सकते हैं नेचुरली इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और कभी ख़त्म भी नहीं होंगे. एग्जाम्पल्स विंड, सन, बायोमास, हाइड्रो पावर एक्सेट्रा. दीज आर ऑल्सो नोन एज इनएग्जॉस्टिबल. नॉन रीन्यूएबल एज द वर्ड सजेस्ट नॉन, जो कि नहीं हो सकते हैं इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. एग्जाम्पल्स सॉइल हो गया, फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, एंड दीज आर नोन एज एग्जॉस्टिबल. Another important topic of this chapter, fossil fuels. Fossil fuels are the main forms of energy nowadays.
Fossil fuels are called so because they were formed over a period of millions of years by the action of heat and pressure on the remains of dead plants and animals. तो fossil fuels क्या है? ये dead plants और animals से बनता है सबसे पहली बात तो कि इसके contents है dead plants and animals. और ये कैसे बनता है? When the remains of dead plants and animals are buried under the earth millions years के लिए तब फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं और ये बहुत ज़्यादा So under fossil fuel category, we'll further study other fuels such as wood. Wood is a major renewable natural source. अब इससे हमें पता लगा है wood क्या है, renewable और natural, जो हम पहले ही क्लासिफिकेशन में पढ़ चुके हैं. Wood is a renewable natural resource. The combustion of wood is currently the largest source of energy. What is combustion? Combustion is nothing but burning of wood in air, जो हमने पहले भी fuels की definition में पढ़ा है. Wood can be used for cooking and heating and it may occasionally be used in steam engines and steam turbines. तो अब हमें इसके uses भी याद रखने बहुत ज़्यादा important है. जो इसके uses है for cooking, heating and sometimes in steam engines. Combustion of wood produces heat which can be put a variety of uses. However, it also produces other gases like CO2, carbon dioxide, CO, carbon monoxide, which are undesirable, irritating and dangerous. यानी कि वुड के कंबशन में यानी कि वुड के बर्निंग में ये गैसेस रिलीज होती है जो हार्मफुल है हमारे लिए इवन फॉर द नेचर एज वेल. नाउ वी प्रोसीड टू अनदर इम्पॉर्टेंट फ्यूल, फॉसिल फ्यूल, विच इज कोल. Coal is really important nowadays because coal is a readily combustible black rock or a brownish black sedimentary rock. यानी कि कोल क्या है? सबसे पहले तो sedimentary rock है एक, which is readily combustible. readily combustible का मतलब easily, जो कि जल्दी जल जाता है और काफ़ी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है. Another important fuel with fossil fuel, which is coal. Coal is nothing but a sedimentary black rock which is readily combustible. Readily combustible का मतलब जो easily burn होता है, मतलब जो burn होने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है. कोल के यूजेस पे जाएंगे हम सीधा, which are cooking and coal is also used in steam engine. But there are some disadvantages of coal as well, which is foul smelling gases. It produces foul smelling gases and produce a lot of smoke which causes air pollution. जो एयर पोल्यूशन, इतना स्मोक वो प्रोड्यूस करता है जिससे एयर पोल्यूशन होता है. कोल इज रेडिली कंबस्टिबल ब्लैक रॉक और ब्राउनिश ब्लैक सेडिमेंट्री रॉक. Coal is one of the fuel that has been used for cooking food. However, it produces a lot of smoke and foul-smelling gases, which causes air pollution. Worldwide, coal, a fossil fuel, is the largest source of energy used for generating electricity. इसका एक और यहाँ पे यूज है generating electricity, जो कि widely पूरे वर्ल्ड में यूज होता है. अब हम जाएंगे कोल की अकरेंस. अकरेंस ऑफ कोल इज फाउंड डीप अंडर द सर्फेस ऑफ अर्थ. द मेजर कोल माइंस इन इंडिया आर लोकेटेड. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिया में कहाँ पर है कोल की माइंस, विच इज़ झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल. The largest coal mines are at Bakro and Jharia in West Bengal. The largest coal mine, this is also a very important to be learned. Jharia in West Bengal.
फॉर्मेशन ऑफ कोल. एज द वर्ड सजेस्ट फॉर्मेशन, यानी कि वो कहाँ से फॉर्म हो रहा है. तो कोल वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम प्लांट्स रिमेन्स गॉट बरीड डीप अंडर द अर्थ्स क्रस्ट. तो जैसे कि हमने पढ़ा है कि कोल इज़ अ फॉसिल फ्यूल, तो फॉसिल फ्यूल की फॉर्मेशन में भी हमने पढ़ा है कि इट इज़ फॉर्म फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो सेम इज विद कोल, इट इज़ फॉर्म फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बरीड इन अर्थ फॉर मिलियन ईयर्स. Over a large period of time, the chemical and physical properties of these plants' remains were changed through geological actions that led to the creation of this solid material. The process of conversion of dead plants into coal is called carbonization. If another important term is carbonization. इसका मतलब है कि जिस प्रोसेस में डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कोल के अंदर फॉर्म होते हैं, उस प्रोसेस को हम कार्बनाइजेशन कहते हैं. टाइप्स ऑफ कोल. तो टाइप्स ऑफ कोल्स पढ़ने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि कोल अलग अलग टाइप के कैसे बनते हैं. तो दिस इज़ नथिंग बट डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस. यानी कि कोल की टाइप्स किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे, प्रेशर पे और टाइम पीरियड. जो जितने ज़्यादा टाइम के लिए बरीड होगा, जो जितने ज़्यादा मिलियन ईयर्स के लिए बरीड होगा, वो ज़्यादा अच्छा कोल होगा. ये हमें अच्छे से पता है. सो टाइप्स ऑफ कोल आर ऑफ 4 टाइप्स. फर्स्ट इज पीट. पीट इज द सॉफ्ट ब्राउन सब्सटेंस दैट इज मेड ऑफ 30% ऑफ कोल, 30% ऑफ कार्बन. तो जिसमें कार्बन कंटेंट ज़्यादा होता है वो अच्छा कोल होता है. तो इसमें सिर्फ 30% है, सो वी कैन डिटेक्ट दैट दिस इज़ अ लो क्वालिटी कोल. सेकेंड इज लिग्नाइट. लिग्नाइट हैज़ कार्बन कंटेंट ऑफ अबाउट 38%. It is regarded as the lowest grade of coal. It has been used mainly for electric power generation. ये electric power generation के लिए यूज़ किया जाता है. और जैसे कि हमने पढ़ा कि ये 38% ही इसमें कार्बन होता है, तो दिस इज़ ऑल्सो अ लो क्वालिटी कोल. फोर्थ इज बिटुमिनियस. Bituminous has about 65% of carbon content. It is used for power generation and for making another type of fuel called coke. अब इससे हमें पता लगा है कि बिट्यूमिनस से एक और टाइप ऑफ कोल बनता है विच इज़ कोक. ये कैसे बनता है हम अभी आगे पढ़ेंगे. एंड द फोर्थ लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज एंथ्रासाइट. दिस इज द बेस्ट क्वालिटी कोल and has about 90% of carbon content. It is regarded as high grade coal and low grade is lignite. Destructive distillation of coal. तो जैसा हमने पढ़ा था कि बिटुमिनस कोल से कोक बनता है, तो यही एक प्रोसेस है कोल को और किसी चीज़ में कन्वर्ट करने का. तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल इज स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल इन एब्सेंस ऑफ एयर. तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग, यानी कि हम इसे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे गर्म करते हैं इन एब्सेंस ऑफ एयर, यानी कि एयर के बिना, यानी कि वैक्यूम में. और फिर जो इसके प्रोडक्ट्स आते हैं वो होते हैं कोक, कोल टार एंड कोल गैस. दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एंड कोल गैस. Now we'll study them further individually. सबसे पहले है coke. It is a hard and porous substance. Its main uses are it is used as domestic as well as industrial fuel. तो इसे हम फ्यूल में mainly यूज़ करते हैं, domestic as well as industry. Domestic मतलब कि घर में, और industry is industry. It gives very little smoke. तो ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है कि it gives very little और almost negligible which is no smoke. Second use of coal is extraction of metals. ये extraction of metal में भी काफ़ी ज़्यादा help करता है. And the third use is
इट कैन बी यूज एज अ फ्यूल गैस। ये गैस फ्यूल गैस की तरह भी यूज़ करते हैं, जैसे कि वाटर को हम यूज़ करते हैं CO+H2 के फॉर्म में, वैसे ही हम कोक को भी यूज़ कर सकते हैं एज अ फ्यूल गैस। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज कोल टार। कोल टार इज द ब्लैक colored viscous liquid. This is a liquid and this was in solid form. तो यानी कि ये इसमें तीनों स्टेट में भी हमारे को तीनों फिजिकल स्टेट में हमारे को प्रोडक्ट्स देता है, विच इज़ कोक इज सॉलिड, कोल टार इज लिक्विड एंड कोल गैस इज गैसियस एज द नेम सजेस्ट। सो कोल टार के यूजेस हैं, इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग ऑफ ड्रग्स, परफ्यूम्स, पेंट्स, photographic materials, roofing top and etc. The third product is coal gas. It is an inflammable gas. Third product is coal gas. It is an inflammable gas. इनफ्लेमेबल मतलब जो आग को जला सकता है। इट इज़ यूज एज डोमेस्टिक फ्यूल, अगेन ये भी डोमेस्टिक फ्यूल के लिए यूज़ होता है, एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल, डोमेस्टिक एज वेल एज इंडस्ट्रियल फ्यूल। हम आगे पढ़ेंगे, में याद है। Now we will proceed to another important fuel, fossil fuel, which is petroleum. Now petroleum is a dark colored, viscous and foul smelling liquid. Physical state of petroleum is liquid, whereas coal was a hard material which is solid. Commonly called crude oil. So another name of petroleum is crude oil. It is found in rock formations in the earth. Its name derived from a Latin word petra. Latin word petra, which means rock. So petroleum is obtained from a rock, which is derived. Its name is derived from a Latin word known as petra. And oleum, which is oil, which means oil. Again, this is also a Latin word, which means rock oil. Now we will further proceed to the occurrence of पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज़ फाउंड एट मॉडरेट डेप्थ्स, यानी कि कोल जो था वो हमें बहुत ज़्यादा डीप मिलता था, बट पेट्रोलियम हमें कोल से थोड़ा ऊपर ही मिल जाता है, बिटवीन 2 लेयर्स ऑफ इम्प्रेशियस रॉक्स, यानी कि 2 रॉक्स के बीच में, बिटवीन 2 रॉक्स। पेट्रोलियम डिपॉजिट्स आर यूजुअली फाउंड मिक्सड विथ सॉल्ट वाटर। इट इज़ मिक्सड विथ सॉल्ट वाटर। पेट्रोलियम बीइंग लाइटर एंड सॉल्ट वाटर फ्लोट्स ओवर इट, यानी कि सॉल्ट वाटर फ्लोट करता है पेट्रोलियम के ऊपर क्योंकि इट्स लाइटर इन वेट। नेचुरल गैस इज फाउंड अबव पेट्रोलियम। इट इज ट्रैप्ड बिटवीन द रॉक कैप एंड द पेट्रोलियम लेयर। तो नेचुरल गैस जो हम हमारा अगला टॉपिक करेंगे, इट इज़ फाउंड अबव पेट्रोलियम, यानी कि पेट्रोलियम के भी ऊपर। इट गोज लाइन वाइज, जैसे पहले नेचुरल गैस, फिर पेट्रोलियम और फिर कोल। अकरेंस ऑफ पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और कोल के लिए हम एक बार रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायग्राम से भी पढ़ेंगे। सो दिस इज़ द इंटीरियर ऑफ अर्थ, जहाँ पे यहाँ होता है सलाइन वाटर और सॉल्ट वाटर, जो हमने ऊपर पढ़ा था। इसके ऊपर होता है पेट्रोलियम, इसके ऊपर होता है नेचुरल गैस, this is found between 2 rocks and this is found between 2 rock caps. इसके ऊपर होता है impervious rocks. We are proceeding to another topic, refining of petroleum. Refining is nothing but the process of separating different components of petroleum from itself.
Petroleum is mixture of various materials which are separated from one another and used for different purposes. तो पेट्रोलियम के अंदर बहुत सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, तो उन्हीं को हम सेपरेट करते हैं, उसको रिफाइनिंग बोलते हैं, ताकि हम उनको अलग अलग यूज़ में यूज़ कर सकें. बोलो. तो अब हम रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम को ही डायग्रामेटिक फॉर्म में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले ये क्रूड ऑयल का टैंक होता है, उसमें से ये इलेक्ट्रिक फर्नेस में जाता है जहाँ पे इसको हीट करते हैं ताकि पेट्रोलियम अपनी डिफरेंट फॉर्म्स में कंडेंस होके और लिक्विड फॉर्म में जाए. तो ये जो हमने बनाया है इसका मतलब है कि हीट होने के बाद वो पहले कंडेंस करता है, उसके बाद थोड़ा सा जब वो इसके टैंक के अंदर आ जाता है तो वो थोड़ा सा कूल होने के बाद लिक्विड फॉर्म में होता है और वो इन आउटलेट से बाहर निकल जाता है, जिससे हम उनको डिफरेंट टाइप ऑफ यूजेस में यूज़ कर सकते हैं. तो जैसे जैसे कंडेंस होता है तो सबसे पहले हमारी निकलती है पेट्रोलियम गैस, जो सबसे ऊपर से निकलती है गैसियस फॉर्म में. फिर हमारा निकलता है पेट्रोल जो कि 70 डिग्री सेल्सियस पे निकलता है. उसके बाद केरोसिन विच इज़ 120 डिग्री सेल्सियस. फिर यहाँ पे होता है लुब्रिकेटिंग ऑयल. नाउ वी विल प्रोसीड. अब हम रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम को ही डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में पढ़ेंगे. सो दिस इज़ अ टैंकर ऑफ क्रूड ऑयल जिसमें क्रूड ऑयल है. यहाँ से ये इलेक्ट्रिक फर्नेस में जाता है जहाँ पे ये हीट किया जाता है अप टू 400 to 600 डिग्री सेल्सियस पे. उससे क्या होता है, पेट्रोलियम जैसे जैसे हीट होता है उसकी कंडेंस होता है और वो ऊपर जाता है और वहाँ पे स्टडी अबाउट द यूजेस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम, जो कि हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था. हम उन्हीं के यूजेस पढ़ेंगे. तो फर्स्ट इज़ रेजिडियल ऑयल, जिसका हमने पढ़ा था कि एस्फाल्ट जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है. तो हम इसका यूज़ देख लेते हैं. एस्फाल्ट इज़ अ ब्लैक एंड स्टिकी सॉलिड यूज फॉर मेकिंग रोड्स एंड कोटिंग अंडर साइड ऑफ द इलेक्ट्रिक पोल्स, यानी कि ये मेकिंग ऑफ रोड्स में काम आता है एंड इन मेकिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पोल्स. सेकेंड जो होता है प्रोडक्ट इस पैराफिन वैक्स, जो हमने पढ़ा था कि सेमी सॉलिड होता है, पूरी तरह से सॉलिड नहीं होता है, विच इज़ पैराफिन वैक्स. इट इज़ यूज एज द नेम सजेस्ट वैक्स. तो इट इज़ यूज इन कैंडल्स, परफ्यूम्स, वैसलीन एक्सेट्रा. नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है लुब्रिकेटिंग ऑयल, जो हमने पढ़ा था पहला लिक्विड फॉर्म में जो आता है. इट इज़ अ विस्कस ऑयल यूज फॉर लुब्रिकेटिंग मशीन्स. तो ये मशीन्स में काम आता है उनको चलाने के लिए. द नेक्स्ट इज़ फ्यूल ऑयल. As the name suggests, fuel, so it is used as a fuel for domestic purposes and for industry as well. Next is diesel. Diesel is a very familiar term जो कि हम हमारे डेली लाइफ में भी बहुत यूज़ करते हैं. It is used to run generators and heavy machines. नेक्स्ट इज़ कैरोसिन. कैरोसिन इज़ अनदर जो हम डेली यूज़ में काम करते हैं, हमने काफ़ी नाम सुना है. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल, जो कि हम लैंटर्न्स वगैरह जलाने में काम में लेते हैं. द नेक्स्ट वन इज़ गैसोलीन और पेट्रोल. पेट्रोल को हम एक और चीज़ से बोल सकते हैं विच इज़ गैसोलीन और पेट्रोल. तो पेट्रोल इज़ ऑल्सो अ फेमिलियर टर्म जो कि काम आता है टू रन ऑटोमोबाइल्स. लास्ट प्रोडक्ट इज पेट्रोलियम गैस. तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज LPG एंड इट इज़ ऑल्सो अ डोमेस्टिक फ्यूल. अब जो लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का विच इज़ नेचुरल गैस, अब हम उसे पढ़ेंगे. नेचुरल गैस इज़ अनदर फॉसिल फ्यूल. तो ये भी एक फॉसिल फ्यूल ही है, हम इतनी देर से सब फॉसिल फ्यूल्स ही पढ़ रहे हैं. इज़ अ फॉसिल फ्यूल दैट इज़ फाउंड अलॉन्ग विद पेट्रोलियम इन ऑयल वेल्स, यानी कि ये पेट्रोलियम के साथ ही मिलता है ऑयल वेल्स में. नेचुरल गैस व्हेन कंप्रेस्ड एंड स्टोर्ड अंडर प्रेशर. तो जब ये कंप्रेस्ड होती है और प्रेशर के अंदर स्टोर की जाती है
तो इसे हम क्या बोलते हैं, CNG, विच इज़ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। विच इज़ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसके बहुत ज़्यादा यूजेस भी होते हैं। इट इज़ ऑल्सो अ क्लीन फ्यूल। तो अब हम देख लेते हैं नेचुरल गैसेस इंडिया में कहाँ कहाँ मिलती है। इन इंडिया गैस फील्ड्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन गोदावरी कृष्णा बेसिन, गोदावरी एंड कृष्णा बेसिन में मिली है ये। इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन मुंबई हाई एंड त्रिपुरा। सो अब हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं यूजेस ऑफ नेचुरल गैस। इट बर्न्स रेडिली एंड हैज़ अ हाई कैलोरीफिक वैल्यू। तो कैलोरीफिक वैल्यू इज़ कि अमाउंट ऑफ हीट जो वो प्रोड्यूस करती है, अमाउंट ऑफ हीट व्हेन ऑन प्रोड्यूस्ड ऑन बर्निंग इज़ कैलोरीफिक वैल्यू। तो इसकी क्या होती है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है इसकी। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टर्म, कैलोरीफिक वैल्यू। इट इज़ देयरफॉर यूज्ड एज अ फ्यूल इन होम्स एंड इंडस्ट्रीज़। तो ये इसलिए होम्स एंड इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज डोमेस्टिक फ्यूल। इट इज़ यूज्ड एज अ बेटर ग्रीनर ऑटोमोबाइल फ्यूल, यानी कि ये कार्स वगैरह चलाने में काम आता है, और ये ग्रीनर और बेटर है, यानी कि ये कम पोल्यूशन करता है, इसलिए भी ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका अनदर यूज़ है कि इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स। तो ये फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स बनाने में भी काम आता है। That's what makes it so much important and useful.